चंद्रमा के सतह पर कई गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, मेयर्स हैं. It is very difficult to land in this phase. I would like to have a round of applause for the lander for his really done a remarkable achievement by ISRO scientists. So guys, now we are at the lecture hall to watch the Chandrayaan-3 landing live, and also an ISRO scientist will join later in our institute to demonstrate the Chandrayaan-3 mission. We are in the vertical descent phase 1 and we are nearing and approaching the lunar surface. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही the hard work of the entire ISRO community has done. तालियों की करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इंदौर के पास के एक खरगोन जिला, उस जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर एक युवा वैज्ञानिक इसरो में चंद्रयान-3 मिशन में अपना योगदान देते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं श्रोताओं से आग्रह करती हूँ कि तालियों की करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें. मैं आमंत्रित करती हूँ नीरज सत्य जी आपको कि आप आएं और अपना विषय रखें. नमस्ते साथियों. पर चंद्रयान-3 की सफलता ने, उसमें मेरे योगदान ने मुझे यहाँ पहुँचाया. मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. चंद्रयान-3 के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की है. ये देश के लिए एक गर्व का विषय है कि हमने चंद्रमा पर तिरंगा फहरा दिया. इसरो ने ये दिखाया कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और चंद्रयान-3 का यशस्वी अवतरण किया. These are the images taken by our lander camera, lander imager camera. This is the live images taken by the lander imager camera, and landing was happening. These are the real pictures of the moon, and you can see this is the phase when we are descending. This is called rough braking phase. जब हम नीचे की तरफ उतर रहे थे, चारों इंजन फायर हो रहे थे, साथ में इमेजेस जा रही थी. इसके बाद रफ ब्रेकिंग के पास देयर वाज अ पीरियड ऑफ फाइन ब्रेकिंग फेज, जिससे कि फाइन ब्रेकिंग की गई और फाइन ब्रेकिंग में और ज्यादा कंट्रोल किया गया. इस जगह पर आप देखें कि चंद्रमा के सतह पर कई गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, मेयर्स हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लैंड इन दिस फेज, एंड इसरो हैज डेवलप्ड एन टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द लैंडर मॉड्यूल सच दैट वी कैन लैंड सेफली. सो ये निश्चित तौर पर एक यशस्वी अवतरण था, जिससे कि नाउ आप देखिए हम जब जैसे जैसे क्लोजर जा रहे हैं, मून का सरफेस टेरेन बहुत ज्यादा बदल रहा है. और उस वक्त तक there was an inbuilt software which was taking care of where to land. So this is the one corner of the lander from which a camera is there. We could have put more cameras, but we really did not do that because it takes a huge amount of data to transfer. But there were detailed sensors inbuilt which was taking care of the landing in terms of there was an velocity meter, there was an laser Doppler velocity meter, IRAP and LIRAP packages which were measuring the values of rates of going down. So if you see, the terrain was very difficult, and we were reaching to the very low numbers in terms of the height. We were in few meters now. You can see now hovering will come. You see we were very close. After this you will see an hovering phase where the images will change. We'll reach to that point. We were very close to the moon, and सबके दिल की धड़कनें थमी हुई थी इस वक्त. ये वही जगह 23 अगस्त के दिन इस तरीके की लैंडिंग की गई थी.
अभी अभी हम फाइन ब्रेकिंग फेज में हैं and there will be an hovering and retargeting will happen. You can see in the pictures we are reaching quite close to the moon. See now, this is hovering phase. Now you have almost stopped and it is retargeting where to land. And after this, the landing event will happen and we'll see the landing. Now coming to the Chandrayaan 3 mission sequence. तो सबसे पहले चंद्रयान में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? प्री लॉन्च फेज, जहां पर हम लॉन्चर रॉकेट में रखते हैं, वहां कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर्स को बाय एयर. जैसे ही लिफ्ट अप होता है तो वहां पर घर्षण होता है. उस घर्षण के कारण गर्मी होती है, तो हीट शील्ड सेपरेशन होता है और हीट शील्ड्स को सेपरेट करके सैटेलाइट को किया जाता है. और फिर इनिशियल जो ऑर्बिट्स होती हैं उनके अंदर उसको मिशन कमांडिंग दी जाती है. इनिशियली वी हैव रेज्ड द ऑर्बिट फ्रॉम 170 किलोमीटर पेरिजी to 3,84,000 and then captured the moon, and orbit is reduced to 100 by 30 kilometer, and from 30 kilometer power descent was started and power descent time में 4 engines were fired. और ऑर्बिट को बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे ऑर्बिट को बढ़ाकर ऊपर लिया जाता है. और उसके बाद हम फाइनल मून को कैप्चर किया और मून को कैप्चर करने के बाद उस ऑर्बिट को रिड्यूस किया. तो जब हमने मून को कैप्चर किया तो हमने स्पीड घटाई ताकि हम ऑर्बिट कम कर सकें और हम मून के करीब से करीब पहुंचते हैं. जैसे जैसे हम 30 किलोमीटर पर पहुंचे उसके बाद हमने मून लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू किया. उसके लिए दिस इज वन ऑफ अनदर पिक्चर हाउ डू वी रीच मून. दिस इज द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज एंड देन सेपरेशन. आफ्टर दिस प्रोपल्शन मॉड्यूल 18 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग कर दिए गए और लैंडर मॉड्यूल 100 by 30 में चला गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल में साइंस इंस्ट्रूमेंट शेप है जो कि अर्थ टाइप के हैबिटेट प्लैनेट की रिसर्च करेगा. वो कंटिन्यूस अपना कार्य कर रहा है. उसके बाद लैंडिंग जो हुई है इवेंट जो 23 अगस्त को हुआ, वहां पर लैंडिंग का पिक्चर भी इसमें दिया है. 100 by 30 किलोमीटर ऑर्बिट से फिर नीचे की तरफ बढ़े. नाउ दिस इज द लैंडिंग पिक्चर, द व्हाट हैपेंड ऑन द लैंडिंग डे. Initially when we were at 30 kilometer orbit, the velocities were very high, 1.68 kilometer per second kind of the velocities. Then there is a rough braking phase, जिसको हम बोलते हैं कि हमने स्पीड को कम किया, जिसके अंदर हमने चारों इंजिन्स को फायर किया, फिर 2 इंजिन्स को फायर किया, फिर उसके बाद हमने फाइन ब्रेकिंग फेज आया. फिर जब लैंडर कुछ मीटर्स की डिस्टेंस पे था उसे होवरिंग फेज कहते हैं. वहां पर देखा जहां हम लैंड कर रहे हैं, हमारे पास सेंसर्स थे जिससे कि लैंडिंग साइट का अवलोकन किया. हाइट कंटिन्यूअसली पता चल रही थी वेरियस सेंसर्स से कि वो कहां पर है, किस पोजीशन पे है. कंट्रोल सिस्टम, थ्रस्टर्स और इंजिन्स ने लैंडर को कंट्रोल किया ताकि वो सही तरीके से सॉफ्टली लैंड हो. और जब होवरिंग फेज आया उसके बाद वो उसने रीटारगेट किया कि यहाँ पर अगर गड्ढा है, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े हैं, तो हमने उसको सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट किया ताकि यू रीटारगेट योरसेल्फ एंड लैंडर विल लैंड ऑनटू ए प्रॉपर प्लेस. So that kind of complex mission it is. और चंद्रयान 2 में जो एरर्स थे उन एरर बाउंड्स को बड़ा किया गया, बेहतर किया गया, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया, इंजन परफॉर्मेंस को बेटर किया, सारे कंट्रोल सिस्टम्स को बेहतर किया गया. इस वजह से हम सफल लैंडिंग कर पाए. These are the picture. This is Shiv Shakti point. I would like to have a round of applause for the lander for it. Really we have done a remarkable achievement by ISRO scientists. And this is the rover which has come out from the lander. These are the images of that. And rover is coming down from the lander. You can see the sunlight on the ISRO's and India's emblem over there. So this way landing and roving was completed and a successful mission is accomplished. मैं कहना चाहूंगा अंत में कि देखो कहाँ पहुंचे हैं हम, देखो कहाँ पहुंचे हैं हम, चांद से दुनिया देख रहे हैं हम. जहां से छोड़ा था वहां से आगे आए हैं, जहां से छोड़ा था वहां से आगे आए हैं. अब गर्व से कहते हैं कि हम भी चांद पर होकर आए हैं, हम भी चांद. थैंक यू. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी ये प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न जगहों पर देखते हैं, इसमें सर सीवी रमन का ही योगदान है. हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने वाणी को विराम देता हूं. धन्यवाद. कॉलेज के सुनील पटेल जी को कि वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP गौतम जी को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें.
So guys, hope you like the video. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. And hats off to ISRO for successful Chandrayaan 3 mission. 1 लाख तो बनता है उसके लिए. And also appreciating 3 of our alumni from our institute IIIT Jabalpur who have contributed towards the Chandrayaan 3 mission.